Today we are doing exercise 10.2 class 6 maths NCERT. This is question number 1. Here you can see figures are being drawn and we have to find the area of the figures. Now in the first figure you can see this square is covering 4 and this square is covering 9 fully filled squares. Here you can see this square is covering 9 fully filled squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have made dots कि 9 squares हैं, तो area of this square will be 9 square units क्योंकि इसमें 9 full squares बन रहे हैं, then its area will be 9 square units. Now in B part you can see there are 5 fully squares. This is 1, 2, 3, 4, 5. Now here you can see 5 full squares. That's why its area will be 5 square units. Now the figure C contains. Now here you can see इसमें कुछ फुल स्क्वायर्स हैं और कुछ हाफ स्क्वायर्स हैं. तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं फुल स्क्वायर्स कितने हैं. This is 1, this is 2. तो 2 full squares हैं. So we will write there are 2 full squares. Now how many half squares? 1, 2, 3, 4. तो ये 4 हाफ स्क्वायर्स हैं इसमें. 3 फुल स्क्वायर्स एंड 4 हाफ स्क्वायर्स. तो 4 हाफ मिलके कितने हो गए? 2 फुल और 2 फुल ऑलरेडी है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया. Now in D part you can see 8 full squares are there, hence the area of this figure is 8 square units. Now in E part you can see 10 full squares are covered in this figure, that's why the area of this figure is 10 square units. You can count as we have counted in all before these figures. Now in this you can see 2 full squares and 4 half squares. तो 2 full squares तो 2 हो गए, 4 half मिलके कितने बने? 2 squares. So 2 plus 2 there will be 4 square units. In G part you can see 4 full squares and 4 half squares. अब half squares मतलब triangle है half, तो half squares को हम कह सकते हैं 2 full squares क्योंकि 4 half squares मिलके 2 full squares बना रहे हैं. तो that's why 4 plus 2 it is 6 square unit. G का एरिया हो गया 6 square units. Now in H you can see 5 full squares are there. 5 full squares. You can see this is 1, 2, 3, 4 और this is 5. So 5 full squares are there. That's why its area will be 5. इसमें भी अगर हम ऐसे ही काउंट करें तो 9 squares आ रहे हैं. That's why the area of the figure I is also 9 square units. In this figure J you can see 2 full squares and 4 half squares. So 2 full squares means 2 squares and 4 half means half 1 बनता है, तो 2 half मिलके 1 बनाते हैं, तो 4 half means 2, तो 2 plus 2 4 square units. Now in K you can see 4 full and 2 half. 2 half means 1 or, okay, so that's why it is 5 square units. Now in this figure you have to make table to find out how much area the following figure covered. So इसमें हमको क्या देखना होता है कि हाफ कितने हैं. पहले तो हम देखेंगे फुल स्क्वायर्स कितने हैं, उसके बाद हम देखेंगे हाफ फिल्ड कितने हैं, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. आफ्टर दिस वी विल फाइंड मोर देन हाफ फिल्ड कितने हैं, उसके बाद देखेंगे लेस देन हाफ फिल्ड कितने हैं. तो जो मोर देन हाफ होते हैं उनको हम पूरा मानते हैं और जो लेस देन हाफ होते हैं उनको हम ज़ीरो मानते हैं. तो इसमें तुम देखो फुली फिल्ड कितने हैं.
सो फुली फिल्ड 1 और 2, तो ये पूरे पूरे स्क्वायर्स आ रहे हैं, ये 2 स्क्वायर्स जो हैं वो पूरे हैं। हाफ फिल्ड इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था, यहाँ पे ये देखो ये 2 लिखा है फुली फिल्ड में, और फिर इसका एरिया भी हमने 2 लिख दिया। हाफ फिल्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे डैश बना दिया, हम 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब मोर देन हाफ फिल्ड, जो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं वो हैं 6। ना हेयर यू कैन सी वो कौन से 6 होंगे, एक ये हो गया, देन 2, दिस इज 2, 3, ये आधे से ज़्यादा हैं, 4, 5, आधे से ज़्यादा, जो आधे से ज़्यादा हैं, और ये हो गया 6, दिस विल बी 6। अब ये जो है ये मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ को मैंने बताया आपको 6 यहाँ पे मैंने मार्क किया है, मोर देन हाफ 6 हैं, तो 6 एरिया हो गया इनका। आधे से ज़्यादा जो होते हैं उनको हम पूरा ही मान लेते हैं, और जो आधे से कम होते हैं, जैसे आधे से कम इसमें कितने 6 हैं, इसमें आधे से कम वाले, जैसे कि एक ये हो गया 1 2 3 4, this 4 and 5, ओके। तो यहाँ पे 6, तो ये हो रहे हैं लगभग 6 हो रहे हैं, तो दैट्स वाई इट विल बी टेकन एज 0। जो हाफ लेस देन हाफ होते हैं तो उनको हम 0 मान लेते हैं। तो हमने जब इसका टोटल किया 2 + 6 किया तो 8 आया। नाउ इन द सेम फिगर m फुली फिल्ड यू कैन सी 5, हाफ है ही नहीं तो डैश डैश, मोर देन हाफ जो है वो 9 है, और लेस देन हाफ 12 है, तो 12 वाले को तो हम 0 कर देंगे क्योंकि लेस देन हाफ हम काउंट नहीं करते हैं, और मोर देन हाफ जो है उनको पूरा लिख लेते हैं। तो दैट्स वाई टोटल एरिया हो गया इसका 5 + 9 14 सेंटीमीटर। ना दिस इज लास्ट, इसमें फुली फिल्ड 8 है, हाफ फिल्ड नहीं है, मोर देन हाफ फिल्ड 10 है, और लेस देन हाफ फिल्ड 9 है। तो मोर देन हाफ फिल्ड जो है उन्हें 10 ले लेंगे और फुली फिल्ड को 8, तो 8 + 10 हो गया 18। I think you have understood. Otherwise, you can comment in the comment box for the queries that you are having.